Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome dear students. How are you? Hope so you will be fine. The Smart School Peshawar, Gulbahar campus and Canal Town campus. Dear students, as you know that we have started a series of recorded lectures and we hope so that you will be following our instructions by doing your classwork and homework. But students, as you know that you are having your second monthly assessment in September and you are not coming to school and not attending the regular classes. That's why we are providing guidance to you through videos and lectures. So watch these videos carefully because all these videos are based on attemptation and preparation of your assessment and you will take help from these videos. Introduction, lecture number 4, class 7, subject computer studies, subject teacher Ma'am Iram Salim. This is syllabus for second monthly assessment 2020 to 2021 class 7 subject computer studies unit or topic. Okay students, you are having 2 units included in your assessment. Unit number 2 more features of MS Word 2010 and unit number 3 mail merge in MS Word 2010. We will do only those exercises which are included in your paper and the rest of the exercises we will do after your assessments. First of all, we will start unit number 2. Students, this is a sample or sketch of your paper. You are having 4 questions in your computer paper. Question 1, choose the correct option. Question 2, fill in the blanks. Question 3, match the columns. And question 4, label the following diagram. We will do practice of all these exercises one by one. Online with Computers book 7. This is your computer book. So take out your books. Unit 2 more features of MS Word 2010 page number 13. Open page number 13 of your books. This is page number 13 of your computer book. Okay students, we have done and completed unit number 1. Now we are going to start unit 2 that is also included in your assessment. More features of MS Word 2010. In this unit we will read about how to insert a table in MS Word, define row, column and cell, add or delete rows and columns, merge and split cells, move and resize a table, change row height and column width, apply table styles, apply borders and shading to a table, insert watermark in a document, print a document. Okay students, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये चैप्टर जो है ये फुल जो है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। इस चैप्टर को जब तक आप लोग प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, आप लोग कंप्यूटर MS वर्ड को यूज़ करके ये सब स्टेप्स को परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप लोगों को ईज़िली समझ नहीं आएगी। लेकिन जैसे कि आपके स्कूल्स बंद हैं और आप लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है और ये चैप्टर आपके असेसमेंट में भी आ रहा है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो डिटेल से समझाऊँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोग के घरों में कंप्यूटर अवेलेबल है, आपके पास लैपटॉप है, तो आप लोग काइंडली इन सब चीज़ों को ट्राई करें, इनको अप्लाई करें और आप देखें कि आप लोगों को इसकी समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। Now I'm going to start reading. First of all, mention date, classwork and day and look at your books carefully. Unit 2 more features of MS Word 2010. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में MS Word के फीचर्स के बारे में डिस्कस किया होगा, लेकिन इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ मज़ीद फीचर्स बताए गए हैं MS Word 2010 के। How to insert a table. A table consists of rows and columns. The vertical division of a table is called a column and horizontal division is called a row. Each individual unit in rectangle is called a cell. You can insert a table in your Word document. There are many ways in which you can insert a table. Okay students, आप लोगों को अगर आप लोग अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, जिस तरह से हम लोग कॉपीज़ पे ड्रॉ करते हैं, टेबल एक्चुअली क्या होता है? टेबल जो है वो कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज़ होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कॉलम्स भी होते हैं, रोज़ भी होते हैं, उनके कम्बिनेशन को जो है हम लोग टेबल कहते हैं।
इसके अलावा जो वर्टिकल डिवीज़न होती है मींस जो आपके पास स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में जो डिवीज़न होती है वो कॉलम्स होते हैं, और जो हॉरिजेंटल होते हैं, जो प्लेन होते हैं, उस डिवीज़न को रोज़ कहते हैं। और हर इंडिविजुअल जो आपके पास सेल्स, जो छोटे छोटे रेक्टेंगल ब्लॉक्स बन जाते हैं पूरे टेबल में, उस एक ब्लॉक को सेल कहते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ वेज गिवन है यहाँ पर, दैट हाउ कैन यू इंसर्ट अ टेबल इन योर डॉक्यूमेंट। मेथड नंबर 1, क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। आप लोगों ने इंसर्ट टैब को क्लिक करना है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर इंसर्ट टैब नज़र आ रहा होगा रिबन पे। ठीक है, ये जो हमारे पास फर्स्ट ब्लू कलर की जो लाइन होती है, जो बार होती है, इसको रिबन कहते हैं। यहाँ पर आपको इंसर्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इंसर्ट पे सबसे पहले क्लिक करना है आफ्टर ओपनिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट, जहाँ पर आप लोग टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। आफ्टर दैट क्लिक टेबल फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। आप लोगों ने क्या करना है, इंसर्ट को क्लिक करने के बाद आपने टेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, टेबल का जो ग्रुप होता है, ये जो आपको टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है, आपने इसको एरो को क्लिक करना है तो आपके पास एक ड्रॉप मेन्यू जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सेलेक्ट एंड क्लिक द नंबर ऑफ बॉक्सेस यू वांट इन योर टेबल। आपने बॉक्सेस के नंबर को सेलेक्ट करना है जो आप चाहते हैं कि आपकी टेबल में कितने बॉक्सेस होने चाहिए, यानी कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ होने चाहिए, ये आप लोग वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पेज नंबर 14, एज यू कैन सी, यहाँ पर आप लोगों ने देखा, आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट के बाद आपने टेबल को क्लिक किया, टेबल में आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गई। यहाँ से आप लोग जितने ब्लॉक्स को लेफ़्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो ये आपके पास किसको इंक्रीज़ करेगा, रोज़ को, और जब आप लोग अप टू डाउन आएंगे तो ये आपके पास जब आप अप टू डाउन आएंगे तो ये आप लोगों के पास कॉलम्स को रोज़ को शो करेगा, और जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये आपके पास कॉलम्स को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जितना ज़्यादा बॉक्सेस को चूज़ करेंगे, आपके पास उतने ही रोज़ और कॉलम्स जो है बनेंगे टेबल में। द टेबल अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट, यू कैन टाइप डेटा इन द सेल्स। अब आपके पास देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग की टेबल जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। जितने कॉलम्स और जितने रोज़ आपने चूज़ किए थे, उतने ही रोज़ और कॉलम्स की टेबल आपके पास आ गई है। अब आप लोग अपना डेटा सिंपली इस टेबल के अंदर टाइप कर सकते हैं। ये था मेथड नंबर 1। नाउ मेथड नंबर 2, क्लिक द इंसर्ट टेबल ऑप्शन, द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। आप लोगों ने इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को क्लिक करना है तो आपके पास ये देख सकते हैं फिगर 2.3 में आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा टेबल से रिलेटेड। टाइप द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज यू वांट टू इंसर्ट इन योर टेबल, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कॉलम्स 5 एंड नंबर ऑफ रोज 2। यहाँ पर आप लोगों ने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स मेंशन करने हैं कि आपके फॉर एग्जांपल अगर आप 5 कॉलम्स और 2 रोज़ का टेबल बनाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर कॉलम्स में 5 लिखेंगे, टाइप करेंगे, और रोज़ में 2 टाइप करेंगे। नाउ क्लिक ऑन ओके बटन, योर टेबल इज़ इंसर्टेड। अब आपने ओके बटन को क्लिक करना है तो आपकी जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगी। यू कैन एंटर डेटा बाय सिंपली टाइपिंग इन द सेल्स। और आप लोग डेटा को कैसे एंटर कर सकते हैं, सिंपली आप लोगों ने हर सेल को जो है सेलेक्ट करना है, वहाँ पे कर्सर को लेकर जाना है, और जब आप लोग वहाँ पर टाइपिंग करेंगे तो आपका जो डेटा है वो टाइप हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? बहुत इजी मेथड है, ये दोनों मेथड्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं टू इंसर्ट अ टेबल इन योर डॉक्यूमेंट। नाउ पेज नंबर 15। When you insert a table, 2 new tabs, Design and Layout, appear on the ribbon displaying various table tools. ओके स्टूडेंट्स, जब आप लोग इंसर्ट कर देते हैं टेबल अपनी डॉक्यूमेंट में तो आपके पास न्यू टैब्स आ जाती हैं, 2 न्यू टैब्स आ जाती हैं। द वन इज़ डिज़ाइन एंड द अदर इज़ लेआउट। ठीक है, ये रिबन पे अपीयर हो जाती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेबल टूल्स लिखा है और उसके नीचे आपके पास 2 न्यू टैब्स ओपन हो गए हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट। अब इनका क्या फंक्शन है, डिज़ाइन में जो है आप लोगों के पास आप टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका कलर चेंज कर सकते हैं,
उसका जो स्टाइल है चेंज कर सकते हैं आप लोग। हेडर और हेडर रो उसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग। बॉर्डर्स उसको लगा सकते हैं, टेबल की बॉर्डर्स बना सकते हैं। उसका जो फॉन्ट का कलर है या जो टेबल की जो बॉर्डर्स का कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। ये सब आप लोग डिज़ाइन टैब में कर सकते हैं। लेआउट में आप लोग क्या कर सकते हैं, लेआउट में आप लोग रोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉलम्स को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। आप लोग सेल्स को स्प्लिट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, और आप लोग टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सेल की जो मार्जिन्स हैं उसकी सेटिंग कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप लोगों को ये दोनों जो ऑप्शंस हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट, ये आपको आपकी टेबल को मोर इन्हेंस करने के लिए आप लोग इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। Let us study about the uses of various table tools by using these tabs. अब हम स्टडी करेंगे कि इन टैब्स को यूज़ करके आप लोग और कौन कौन से टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेबल टूल्स को यूज़ कर सकते हैं इन टैब्स को यूज़ करते हुए। हाउ टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल। अब आप लोग ये देखेंगे कि आप लोगों ने एक टेबल तो बना ली है, लेकिन आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए या एक एक्स्ट्रा रो चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग कैसे उसको इंसर्ट करेंगे आफ्टर इंसर्टिंग योर टेबल, क्योंकि आप तो टेबल इंसर्ट कर चुके हैं। यू कैन ऐड रोज एंड कॉलम्स इन द टेबल बाय यूजिंग द लेआउट टैब। आप लोग अपनी टेबल में रोज़ और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, लेआउट टैब के थ्रू। ठीक है, एडिंग न्यू कॉलम इन टेबल। To add columns to a table, follow the given steps. Place the cursor in the table where you want to insert a column. आप लोगों ने अगर न्यू कॉलम ऐड करना है टेबल में, तो आप लोगों ने आपने गिवन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने जो कर्सर होगा आपकी स्क्रीन पे, आपने उसको वहाँ पर लेकर जाना है, उस जगह पर रखना है जहाँ पर आप लोग कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, न्यू कॉलम को। ठीक है, क्लिक द लेआउट टैब। उसके बाद आपने लेआउट टैब को क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। क्लिक इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट फ्रॉम द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। अ न्यू एंड एम्प्टी कॉलम इज इंसर्टेड। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब कर्सर को उस जगह पे रख दिया जहाँ पर आप कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ से आपने ऑप्शन चूज़ करना है कि आप राइट पे कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं या लेफ़्ट पे कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने राइट या लेफ़्ट पे कॉलम को इंसर्ट करना है जहाँ पर आप लोग चाहते हैं। तो जब आप लोग उसके बाद क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक न्यू और एम्प्टी कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास न्यू कॉलम इंसर्ट हो गया है और बिल्कुल एम्प्टी कॉलम है। अब आप इसमें अपना डेटा इजीली इंटर कर सकते हैं। एडिंग न्यू रो इन अ टेबल। अब आप लोगों ने कॉलम तो ऐड कर दिया, अब अगर न्यू रो ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। टू ऐड रोज टू अ टेबल, फॉलो द गिवन स्टेप्स। प्लेस द कर्सर इन द टेबल वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ रो। सबसे पहले आप लोगों ने वही सेम प्रोसीजर करना है कि आपने कर्सर को वहाँ पे प्लेस करना है जहाँ पर आप न्यू रो को इंसर्ट करना चाहते हैं। क्लिक द लेआउट टैब। आपने अगेन लेआउट टैब को क्लिक करना है। क्लिक इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। न्यू एंड एम्प्टी रो इज इंसर्टेड। अगेन आपने सेम मेथड करना है। जब आप लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो आपने फिर रोज़ एंड कॉलम्स ग्रुप में जाना है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, इंसर्ट अबव इंसर्ट बिलो। ठीक है, इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो मींस कि आप लोग सबसे टॉप पर जो है रो को इंसर्ट करना चाहते हैं या सबसे एंड पे। ठीक है, बॉटम पे आपने रो को इंसर्ट करना है। ये आप लोगों की चॉइस है, जहाँ पे भी आप लोग रो को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों की जो न्यू रो है वो अपीयर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की जो ये ब्लू कलर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों की एक न्यू रो ऐड हो गई है, इंसर्ट हो गई है, और आप लोग इसको ईज़िली इसमें अपनी जो एंट्री है डेटा की वो कर सकते हैं या अपना डेटा टाइप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया। हाउ टू इंसर्ट अ टेबल इन योर डॉक्यूमेंट, आफ्टर दैट हाउ टू ऐड कॉलम्स एंड रोज इन योर टेबल,
नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू डिलीट रोज एंड कॉलम्स। ऐड तो हमने देख लिया है, रीड कर लिए, अब डिलीट कैसे करनी है रोज़ और कॉलम्स को अपनी टेबल से, अब इसको रीड करते हैं। यू कैन डिलीट रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल बाय यूजिंग द लेआउट टैब। आप लोग लेआउट टैब के थ्रू ही अपनी रोज़ को या कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं टेबल से, ठीक है। डिलीटिंग अ रो फ्रॉम अ टेबल। टू डिलीट अ रो फ्रॉम अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स। Place the cursor in the row or select the row by clicking the select option from tables group. Click the layout tab. आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले तो कर्सर वहाँ पर लेकर जाना है जिस रो को आप डिलीट करना चाहते हैं। बाय मिस्टेक आपने जो है किसी गलत डेटा की एंट्री कर दी या पूरी की पूरी रो जो है वो गलत है, तो आप लोग उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पूरे टेबल को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए आपको पूरे टेबल को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली उस एक इंडिविजुअल रो को सेलेक्ट करना है। जब वो पूरा सेलेक्ट कर लें आप उसको, तो उसके बाद आपने लेआउट टैब को क्लिक करना है और वहाँ से जो है आप लोगों ने डिलीट का जो ऑप्शन होगा, क्लिक डिलीट फ्रॉम द रोज़ एंड कॉलम्स ग्रुप, अ मेन्यू स्क्रीन अपीयर्स, क्लिक डिलीट रोज़ फ्रॉम इट, द एंटायर रो गेट्स डिलीटेड। और जब आपके पास ये रेड कलर का क्रॉस बना है जिसके साथ डिलीट रोज़ लिखा होगा, तो आप लोगों ने रोज़ एंड कॉलम्स ग्रुप से डिलीट रोज़ को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास एक मेन्यू स्क्रीन अपीयर हो जाएगी जहाँ से आप लोग डिलीट रोज़ पे क्लिक कर देंगे और आपकी जो पूरी की पूरी रो होगी जो आपने सेलेक्ट की होगी वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था मेथड रो को डिलीट करने का। नाउ डिलीटिंग अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल। अब कॉलम को कैसे डिलीट करना है, टू डिलीट कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको गिवन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, सेम प्रोसेस है। प्लेस द कर्सर इन द कॉलम यू वांट टू डिलीट, क्लिक द लेआउट टैब, क्लिक डिलीट फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स ग्रुप, अ मेन्यू स्क्रीन अपीयर्स, क्लिक डिलीट कॉलम्स फ्रॉम इट, द सेलेक्टेड कॉलम गेट्स डिलीटेड। ओके स्टूडेंट्स, आपने सेम प्रोसीजर करना है। पहले आपने जिस रो को डिलीट करना है वहाँ पे आप कर्सर लेकर जाएंगे, फिर उस जिस कॉलम को डिलीट करना है वहाँ पर आप कर्सर लेकर जाएंगे, आपने फुल कॉलम को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को ये पर्पलिश कलर में नज़र आ रहा है, ये सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपने लेआउट टैब पे क्लिक करना है, उसमें आपको डिलीट रोज़ एंड कॉलम्स ग्रुप में जाकर डिलीट पे क्लिक करना है। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज़ एंड डिलीट टेबल। तो आपने कॉलम डिलीट करना है तो आप डिलीट कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिलीट कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। तो आपने जिस कॉलम को सेलेक्ट किया होगा वो एंटायर कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को जो न्यू आपकी जो मतलब बाकी की जो टेबल है वो इसी तरह रहेगी, सिर्फ आपने जो सेलेक्ट किया होगा वही कॉलम डिलीट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन सब स्टेप्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। अगर आपके पास अवेलेबल है, MS वर्ड अवेलेबल है और आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है इन सब स्टेप्स को। नाउ कमिंग टू द क्लास वर्क, you have to mention date, classwork and day. Exercise A, choose the correct option and write in the space provided. Number 1, borders and shading options are present in dash group. बॉर्डर्स एंड शेडिंग का जो ऑप्शन है वो कौन से ग्रुप में आपको नज़र आता है, बैकग्राउंड, टेबल स्टाइल्स या शो एंड हाइड। बॉर्डर्स एंड शेडिंग जो है वो टेबल स्टाइल्स में होता है, ठीक है। नंबर 2, टेबल स्टाइल्स आर प्रेजेंट इन डैश टैब। टेबल स्टाइल्स कौन से टैब में प्रेजेंट होते हैं, डिज़ाइन, लेआउट, इंसर्ट। टेबल स्टाइल्स जो है वो डिज़ाइन टैब में होते हैं। नंबर 3, प्रिंट लेआउट ऑप्शन इज़ प्रेजेंट इन डैश टैब। प्रिंट लेआउट जो है वो कौन से टैब में प्रेजेंट होता है, इंसर्ट, होम या व्यू। तो व्यू, ठीक है। प्रिंट की से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमें व्यू या प्रीव्यू में ही शो होती हैं टैब में, तो इसलिए आपने व्यू लिखना है। नंबर 4, अ डैश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल। वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स कौन से होते हैं, रो, कॉलम या बॉर्डर। कॉलम। A dash is a rectangular area formed by intersection of a row and a column. मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगुलर एरिया जो कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम से जो रेक्टेंगुलर एरियाज़ बनते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल जो सेल्स बन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, टेबल, सेल, कॉलम। सेल,
ओके स्टूडेंट्स, यू शुड डू योर क्लास वर्क नीटली एंड प्रॉपरली. आप लोगों ने ब्लू पेन के साथ इसको फिल करना है और बिल्कुल नीट राइटिंग में करना है, ठीक है. Okay dear students, we have done our lesson for today. Inshallah we will continue our next topic in our upcoming videos. So watch these videos, keep learning. Thank you. Allah Hafiz.